This is an absolute jaffer through the gate of a wonderful player. So he recently made his debut for Mumbai in the Ranji Trophy last year against Tamil Nadu, right? Yeah. Okay, so the reason he got a call for the Mumbai team was an exceptional performance in the Under-23 Colonel C.K. Naidu Trophy. He scored more than 600 runs with an average of 200, which for any cricketer is exceptional. And that too at such a young age. So first of all, Bhupen, welcome to Through the Gates, and thanks for doing this. Actually, this is the first No problem, guys. episode that I'm doing. So Yeah. I'll start off by asking you, how is your quarantine? Like, how is Quarantine is like pretty much same, like जैसे सबका होता है वैसा ही almost. I try to remain motivated. थोड़ा घर का काम कर लेते हैं and I do some practice, some drills, and I'm learning something new and I work out. बाकी जो normal है सबका routine वैसा ही है. Yeah, I started making motivational videos on YouTube. Yeah. कुछ अच्छा है, एटलीस्ट कुछ है करने के लिए ना ऐसे टाइम पे. It's very important. Yeah. इसलिए You have to do something. Yeah. वरना फिर फालतू. Okay. So first thing I'll ask is like how did you come across the sport cricket? Yeah, so around 13 years ago, I had been to a nearby ground with my dad, and there I was watching a match, and it was a good match. So क्या हुआ? I was sitting on the boundary line. So मेरे साइड एक बॉल आया, मतलब किसी ने एक शॉट मारा और मैंने वो बॉल को पकड़ा, मतलब बाउंड्री के बाद. So I was like यार ये बॉल पकड़ने में इतना अच्छा है, इसको मारने में तो और मजा आएगा. So from the next day onwards, I started playing on the same ground. उधर ही सुबह academy था, नेट्स रखता था. So I started playing on the same ground. And then धीरे धीरे I started practicing. मेरे डैड मुझे मेरे घर के पास बॉलिंग डालते थे प्लास्टिक बॉल से, then season बॉल से, कॉक बॉल से. Then slowly I got started selected in academies और तब ऐसे धीरे धीरे होके गया. And you have like a small net made na, in your society or something? Yeah, in my home actually. I have my own plot, so there usually I practice in my free time. Okay, and how did the thought of making it or pursuing it as a profession come to you? Actually, till 3 to 4 years back, I just used to play it for my fun, passion. Obviously, वो young age में 15-16 की age में इतना knowledge नहीं था, why I am playing, इसमें क्या होएगा and all. So I just used to play for my passion. Then later मुझे समझा कि once I got selected for time, I would like to add something. Till the time I was 15, मतलब मैं ऐसा 85-90 kgs था, 90 kgs, very healthy. Wow. Then I lost 15 kgs, 15-20 kgs after that. And एक जस्ट अ मिनट, नीचे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, बिग फैन एंड जॉइनर. थैंक यू गाइस, अच्छा लगा आप लोग को भी देख के कि आप लोग ज्वाइन कर रहे हो. या यू कैन आस्क. तो स्टार्ट प्रोफेशनली कैसे किया? ऑफ कोर्स यू वुड हैव एनरोल्ड योरसेल्फ इन एकेडमी, लेकिन जब यू सेइंग के 2-3 साल पहले जो प्रॉपर थॉट है कि हाँ जब आप सिलेक्ट हो गए तो यू कैन परस्यू इट, तो वो कैसे, मतलब हाउ डिड दैट चेंज कम विद इन योर माइंड? Yeah, so basically, actually till my 6th standard, I was in a non-cricket playing school, and then later on I shifted to Don Bosco, in 7th standard, and first year में ही मतलब मेरा records बन गया, मतलब 3 centuries 3 matches में और वगैरह. तो फिर I'll tell you about that. Bhupen has a record of scoring 398 in the Guile Shield, which is the under-14 school tournament in Mumbai. And on being asked by a journalist, maybe he said that he was very disappointed to get out just 2 runs short of that 400 mark. So coming to serious things, Bhupen, you place hard work as one of the most important things.
Sorry, hard work was? You place hard work as one of the most important things Yeah, in your journey. because, yeah, Someone should do to reach there. Like hard work is something you say that सभी को करना है अगर एक goal पे पहुंचना है. Okay, so Yeah. how important has it been for you? see, basically, मेरे लिए तो हार्ड वर्क ही सब कुछ रहा है, बिकॉज मतलब not being from a very influential family and not being any that godfather, anything like that. So everything what I have achieved is due to hard work only. Because in my video also, when I used to tell everyone, or as a chief guest wherever I go to some places, I always tell them that if you believe on the God, it's great. But if you believe on hard work, God will believe on you. So I have always thought कि भाई आज हार्ड वर्क को कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. तो अगर मुझे जैसे कभी भी जैसे कोई ये बात बताता है, जैसे इवन आई एम अ बिलीवर ऑफ हार्ड वर्क, जैसे मुझे भी मेरा भी कि लाख वक्त का वो फैक्टर इज डिफरेंट, बट आप अगर मेहनत करोगे तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, चाहे स्लो आए बट डेफिनेटली मिलेंगे, वो होता है. तो अगर कोई है ऐसा विच एवर फील्ड, नॉट जस्ट क्रिकेट और एनी स्पोर्ट, जैसे नॉर्मल जैसे एकेडमिक्स वाइज भी, तो जैसे कोई अगर जैसे होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार मैं कर रहा हूँ बट कुछ हो नहीं रहा, तो इज इट के वो कुछ गलत प्रोसेस गलत है या लाइक व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? See, I'll tell one thing, कुछ भी बड़ा करना है ना तो उसमें टाइम लगता है. ऐसा नहीं है कि if you started playing cricket एक साल में मुझे रिजल्ट आ जाएगा, I'll play for मुंबई, या सपोज फॉर एग्जाम्पल आई स्टार्टेड मेकिंग यूट्यूब वीडियोस, तो एक महीने में मेरे वीडियोस वायरल हो जाएंगे, मुझे 2000 सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, वीडियो वायरल हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, मैंने अभी जो भी खेला है, रणजी ट्रॉफी खेला है, जो भी खेला है, दैट इज बिकॉज ऑफ माई 13 years ऑफ कंसिस्टेंट हार्ड वर्क. उसके कारण मिला है मुझे. तो कुछ भी चीज के लिए ना, इवन व्हेन यू आर बैटिंग, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड पेशेंस एंड कंसिस्टेंट, ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं टू बिकम सक्सेसफुल. एक, यू हैव टू बी पेशेंट, जो भी कर रहे हो कंटिन्यूस करना है, और दूसरा कंसिस्टेंसी. Coming to consistency, what makes you such a consistent player? Your average in the under-23 CK Naidu Trophy was over 200, and which led to your Ranji call-up. So, what is your method to stay consistent? Basically, you just have to go with the flow. मतलब अगर एक बार जो फॉर्म मिला है, मतलब if you scored 100 in one match, तो अगले मैच में उसको ग्रांटेडली नहीं लेना है, तो खुद ही कंसिस्टेंसी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मेनी प्लेयर्स व्हाट दे डू इज फॉर देयर फर्स्ट वन बिग स्कोर, मतलब समझो पहले 100 के लिए दे विल वर्क वेरी हार्ड, आज मुझे करना है, बहुत डेडिकेशन है, एंड देन वो 100 आ गया ना, उसके बाद दे विल रिलैक्स, अरे अपना काम हो गया. ऐसा नहीं होता. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड कि यार नहीं, नेक्स्ट मैच, मैच बाय मैच, नेक्स्ट मैच, खुद ही कंसिस्टेंसी आ जाएगा. तो जस्ट मतलब सेम प्रोसेस को वापस करते करते एक से कुछ नहीं होगा. हाँ, ऑब्वियसली एक से कुछ नहीं होगा. और एक मतलब एक बैटिंग रिलेटेड क्वेश्चन था कि व्हेनेवर यू वॉक इनटू बैट, कहीं भी, चाहे कॉलेज का हो, स्कूल का रहा हो, नाउ व्हेन यू प्लेइंग फॉर मुंबई, क्या माइंडसेट से यू वॉक इन? देखिए जैसे बहुत होता है कि जब आप बैटिंग करने जाते हो तो क्या सोचकर जाना है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, एंड दिस इज नॉट समथिंग दे वर टोल्ड बाय आवर कोचेस और समवन. तो व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू बैटिंग, गोइंग इनटू बैट? हाँ, regarding mindset, you know, what I do is, so basically समझो आज कोई बड़े प्लेयर का सेशन है, समझो आज कोई इंटरनेशनल प्लेयर किधर आके बोलने वाला है, सो आई एम अटेंडिंग दैट सेशन, तो मैं भी उसको वही पूछता हूँ कि माइंडसेट के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि माइंडसेट एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा क्रिकेट 90% 80% मेंटल गेम है, जो आपका थॉट्स है, तो उसके लिए माइंडसेट बहुत जरूरी. तो मैं एक ही माइंडसेट यूज करता हूँ यार, कि जाने का, जो सीखा है ना वो खेलने का, जो प्रैक्टिस में किया है वो खेलना है और बिंदास खेलना. सो खुद ही परफॉर्मेंस होता है. अगर हमारे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स है कि होगा कि नहीं होगा, या ऐसा कुछ है कि मल्टीपल थॉट्स है कि क्या मालूम होगा कि नहीं, तो फिर नहीं होता है परफॉर्मेंस. अगर वही है कि प्रैक्टिस में जो किया है, जो सीखा है, वो जाके मैं बिंदास अप्लाई करूंगा, तो खुद ही होएगा परफॉर्मेंस.
तो और मेंटली प्रेयर क्या कैसे करते हो आप अपने आप को गेम्स के पहले, इंपॉर्टेंट या क्रूशियल गेम्स के पहले? हाउ सो बेसिक सो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स क्या करते हैं मैच के पहले, मतलब सीनियर प्लेयर्स का मैंने जो देखा है, मतलब इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ मैंने जो देखा है, वो लोग क्या करते हैं कि बेसिकली उनका एक सॉन्ग्स का प्लेलिस्ट होता है। तो मैच के पहले वो लोग कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग्स हो गए या कुछ लोग थोड़ा फनी मूड में आ जाते हैं ताकि वो लोग रिलैक्स हो सके, या कुछ लोग अपने आप को अपने डिसिप्लिन हैबिट से मोटिवेट करते हैं, मतलब एक दिन मैच के एक दिन पहले वैसा फूड खाना, मैच के एक दिन पहले जल्दी सो जाना, डिस्ट्रैक्शन से दूर कर, हाँ डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर कर देना, जैसा मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, सोशल मीडिया ऑब्वियसली, तो क्योंकि मैच के एक दिन पहले बहुत लोग टेक्स्ट करते हैं या मैच के दिन वो सब, तो वो सब अवॉइड करना। ये सब कुछ फैक्टर्स है जो अपने आप को कंट्रोल करने या मोटिवेशन रहने में फायदा होता है, मतलब एक सेट रूटीन आप फॉलो करते हो और उससे फिर, हाँ क्योंकि अगर वो सेट रूटीन नहीं है ना तो वो खुद से मोटिवेशन आता नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा है कि हमने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, कुछ भी खा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो वो मोटिवेशन अंदर से आएगा ही नहीं परफॉर्मेंस करने का। लेकिन अगर रूटीन है कि मैच के एक दिन पहले मतलब टाइम पे सोने का है और सब कुछ टाइम पे हो रहा है, खाना बरोबर खाना, तो खुद ही वो मोटिवेशन आ जाता है कि करना ही पड़ेगा। तो कोई अगर मेंटली अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, मेंटली और टफ करना चाहता है, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू? सो बेसिकली ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मेंटल टफनेस, क्योंकि 2 साल पहले तक मैं मेंटली इतना टफ नहीं था, मतलब कुछ भी होता था ना तो नेगेटिव एस्पेक्ट से सोचता था, अरे मैं आउट ना हो जाऊं, अरे ऐसा। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा मेंटल टफनेस पे काम किया, मतलब मेरे कॉलेज में है ऐसे मेंटल टफनेस के प्रोफेसर, उनसे खुद बात किया, पर्सनल लिया, तो मुझे समझ में आया कि मेंटल टफनेस कितना इम्पोर्टेंट है। कि मतलब मेंटल टफनेस नहीं है तो समझो कि कोई भी फील्ड में आगे जाना डिफिकल्ट है। कि आज समझो बॉलर ने मुझे एक बाउंसर डाला और मैं सोचा अरे यार इसका तो बॉल बहुत तेज निकल गया, ये था फर्स्ट एस्पेक्ट सोचने का। सेकंड एस्पेक्ट कि अरे यार इसने मुझे बाउंसर डाला, कोई बात नहीं, इसको डालते रहने दे, जो बॉल मुझे मिलेगा मैं उसे मारूंगा, जो बॉल मुझे नहीं मिलेगा मैं उसे डक करूंगा। ये हो गया पॉजिटिव एस्पेक्ट। तो जो नेगेटिव एस्पेक्ट वाला है, जिसका मेंटली इतना टफ नहीं है ना, वो उसके हाथ पैर हिलने लगेंगे वहां से, और जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो सोचेगा कि मैं इसका रास्ता कैसे निकालूं, उसका सोल्यूशन कैसे निकालूं। तो बेसिकली जो भी अगर किसी को करना है तो जो जैसे बोलते हैं लुक एट द ब्राइटर साइड, सो दैट्स व्हाट कभी भी, और आप उसको ओवरकम करने को ट्राई करो। अभी मैं एक पॉइंट ऐड करता हूँ, कुछ लोग बैटिंग पे जाते हैं ना तो सोचते हैं कि यार मैं आउट ना हो जाऊं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैटिंग पे जाते हैं तो सोचते हैं कि मैं किधर रन्स बना सकता हूँ, आज मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, और वो लोग अलग दिखते थे उन पे। We have a question here. First, मुझे मेरा भी एक क्वेश्चन है पॉइंटेड। How do you manage your academics and your cricket? ये बहुत लोग का सवाल है। जिधर भी आप जाओगे आप क्रिकेटर कोई सवाल पूछते कि यार मैं कैसे, मैं या तो पढ़ूंगा या तो मैं खेलूंगा, तो मैं कैसे करूँ? How have you managed your academics? बेसिकली मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही चीज करते हैं, या तो पढ़ाई करेंगे या तो क्रिकेट खेलेंगे, देखा होगा आपने भी। तो मेरा यार पेरेंट्स का बचपन से रहा है, मेरा खुद का भी रहा है कि दोनों मैनेज हो सकता है। दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में से आप समझो सुबह प्रैक्टिस करोगे, शाम को प्रैक्टिस करोगे, बाकी पूरा दिन कहाँ जाओगे? बहुत लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस हो गया ना उसके बाद उधर घूमेंगे, टाइम पास करेंगे, आराम से घर जाएंगे। मैंने वैसा नहीं था, सुबह से संडे जाएंगे स्पेशली एट दैट कट्टा। तो मैं क्या करता था, खास करके 7 to 9 प्रैक्टिस खत्म हुआ, 9:15 कॉलेज में दिखूंगा आपको मैं चेंज करके, 12:15 कॉलेज खत्म हुआ, 12 o'clock सपोज जो भी, तो उसके बाद मैं आपको 1 o'clock ट्यूशन पे दिखूंगा, 2:30 मेरा ट्यूशन खत्म हुआ, 3:30 में आपको ग्राउंड दिखूंगा। तो ऐसा मैंने अपने आपका शेड्यूल बना दिया था, 3 बाइक लेके निकलता था, 2 टिफिन लेके निकलता था। तो अगर चाहोगे ना, सॉरी मतलब शाम के प्रैक्टिस का अगेन घर जाके फिर रिवाइज करना, व्हाटएवर ऐसा। हाँ, फिर से शाम को फिर से मतलब थोड़ा फिटनेस करता था जिम जाके, रात को सोने के पहले फिर से जो ट्यूशन पे होमवर्क मिलता था वो सब करता था खत्म।
ऐसा मैंने अपना वैसे समझ आता है ग्रेजुएशन मुझे निकाला है। भी। क्या? हेलो? मुझे भी ऐसा कभी लगा नहीं है कि डिफिकल्ट होता है। पता नहीं, मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है कि काफी लोग अभी कहते हैं हाँ, कि नहीं यार काफी लोग नहीं करते होना हैं है। ऐसा। और मेरे भी घर से था एक्चुअली कि दोनों में करना। हाँ, होता है। लेकिन एक एग्जांपल ले सकते हैं हम फॉरेन प्लेयर्स का। जो भी फॉरेन प्लेयर्स है ना, इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, उनको देखो कितने वेल एजुकेटेड भी रहते हैं और कितना अच्छा भी है, मतलब क्रिकेट में भी उन लोग अच्छे ही है। सो हम उनका एग्जाम्पल्स लेना चाहिए हम लोग को। कितने सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं ऐसे जो अच्छा एजुकेशन भी करते हैं और साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं। हाउ वाज दैट फीलिंग जब अंडर 16 में फर्स्ट टाइम आपने डेब्यू किया मुंबई के? हाँ, अंडर 16 में मैंने फर्स्ट टाइम डेब्यू किया था, तब मुंबई में मैच था अगेंस्ट बड़ौदा। सो यार मुझे मतलब एक दिन पहले मालूम नहीं था मैं खेलूंगा नहीं खेलूंगा कल। यार नींद नहीं आ रही थी सच में, मतलब ऑलमोस्ट नींद नहीं आता पूरा रात। और मुझे मालूम नहीं था वो लेवल कैसा होता है स्टेट क्रिकेट का। दूसरे दूसरे स्टेट के प्लेयर्स आके क्या कैसा बॉलिंग डालेंगे, उनका लेवल क्या रहता है। लेकिन अगले दिन जब मैंने मैच खेला, मेरा बैटिंग आया ना, कंप्लीटली मतलब डिफरेंट था। मेरे को जितना लगा था डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्ट नहीं था वो। कि वो जो फैसिलिटी रहता है, अच्छे पिचेस रहते हैं स्टेट मैचेस में, और क्वालिटी अच्छा रहता है क्रिकेट का, बॉल अच्छा रहता है, आउटफील्ड ऐसा रहता है कि गैप में मारा तो सीधा बाउंड्री है। अपने इधर तो कांगा लीग में कभी कभी बड़ा बड़ा ग्रास रहता है। मेरे को लगता है फिर वो मुंबई क्रिकेटर्स को एक एडवांटेज मिलता है वी प्ले ऑन दैट लेवल। या बिकॉज हम लोग का ऐसा है कि काफी बार हम खराब पिच पे खेलते हैं, काफी बार अनप्रिपेयर्ड क्रिकेट रहता है। तो फिर अंडर 23 सीके नायडू ये Yeah. साल का लाइक इतना अच्छा सीजन गया, तो उसके पहले ऐसा क्या लाइक व्हाट वाज योर वो कि इतना अच्छा सीजन चला गया? एक्चुअली मतलब अंडर 23 का मैचेस आ रहा था, कल मैच था और एक दिन पहले का प्रैक्टिस सेशन था। तो तब तक मैं बिल्कुल तब फॉर्म में नहीं लग रहा था, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, मतलब नेट्स में बैटिंग अच्छा नहीं हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पहले कुछ ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं हुआ था सीजन में। तो मतलब हमारे कोच थे अंडर 23 के मुंबई के, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेरे टेक्निकली चेंज किया, थोड़ा सा मेरे को बोला ट्राई करके देख, और वो मुझे बहुत ज्यादा जम गया। और वो मेरे को अभी तक मतलब कंसिस्टेंटली जम रहा है। और वो चेंज करने के बाद ही मतलब 3 मैच में 3 सेंचुरी ऐसा आने लगा, कंटिन्यू हो गया, क्योंकि मेरा एक माइनर मिस्टेक हो रहा था बैटिंग में जो रेक्टिफाई किया गया मेरे सर के द्वारा। तो उसके बाद काफी मुझे इम्प्रूवमेंट लगा और मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया और परफॉर्मेंस होने लगा। तो योर सीमान दुबे ने पूछा है कि टॉक अबाउट दैट फेज जब यू वर लेफ्ट आउट फ्रॉम द अंडर 19 स्क्वाड और फिर वापस 23 में फर्स्ट ईयर में आपको पिक किया। हाँ, तो सेवन हाय फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर लॉन्ग टाइम, गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर ही है, मैं उसको जानता हूँ अच्छे से। तो अंडर 19 का जब मेरा लास्ट ईयर था तो मेरा नी का सर्जरी हुआ था, नी का, राइट नी का, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे। तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं 3 मंथ्स क्रिकेट नहीं खेला था, तो कम बैक करना बहुत डिफिकल्ट था। 3 मंथ्स क्रिकेट नहीं खेला था, नी में के ऊपर भी अनश्योर था। तो जैसे ही मैं ठीक हुआ, सिलेक्शन मैचेस आ गए अंडर 19 के, और 1-2 मैच ही मिलते हैं, तब परफॉर्म करना ही है उसमें, किसी भी कोई भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता। तो 2 मैच 3 मैच गए, मेरा स्कोर नहीं हो रहा था, 4 मैच गए, 5 मैच गए, 6 मैच गए, 7 मैच गए। वो एक ऐसा कि 50 से करूं वो नहीं समझ में आ रहा था मेरे को। फिर बाद में सीजन खत्म हो गया और अभी फिर थोड़ा ऑफ हो गया, मतलब रिलैक्स हो गया कि अब मैं क्या करूं, मेरा इससे ज्यादा मैं क्या करूंगा। अभी मैं और नीचे तो मैं रिलैक्स हो गया। बोल रहे कि भूपेन का वीकनेस मुझे पता है। हाँ, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं है, शायद आपके ही फॉलोअर है, मेरा फॉलोअर नहीं है। अच्छा, बाय द वे कप्पू, आप जो भी हो मुझे बता दो मेरा वीकनेस, सो दैट आई कैन इम्प्रूव अपॉन दैट। और बेटर बैट्समैन ही बिकम। हाँ, अच्छी बात ही है। हाँ, मुझे पूछ रहा है डू यू प्ले एनी अदर स्पोर्ट्स। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत बैडमिंटन का शौक है और टेबल टेनिस का थोड़ा बहुत शौक है और चेस का थोड़ा शौक। व्हाट वाज योर फेवरेट इनिंग्स
टिल नाउ कौन सी इनिंग्स है जो सबसे प्राइज्ड है आपके लिए? ओके, सो एक्सेप्ट दैट 398, मैंने ये साल आसाम के अगेंस्ट अंडर 23 मैच में 269 नॉट आउट बनाया था. मतलब उसमें मेरा स्ट्राइक रेट भी 100 के ऊपर था. तो वो मेरी अब तक की मतलब बेस्ट इनिंग में से एक लगी मुझे. तो लाइक दैट्स आसाम नंबर के 1 अगेंस्ट. या आसाम के अगेंस्ट था यही साल 2000, यही 19 हाँ, में. उसी के बाद फिर कॉल आया ना रणजी? नहीं, उसके बाद फिर मैंने और 2 सेंचुरीज किया, बड़ौदा के अगेंस्ट भी, हिमाचल के अगेंस्ट भी, फिर मुझे कॉल आया. ओह हाँ, सही. तो लेट्स कम टू रणजी ट्रॉफी डेब्यू. या तो अभी वो उसमें जाएंगे. तो वो फीलिंग कैसा था मुंबई को रिप्रेजेंट करना, जो इंडिया के डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है? तो वो क्या फीलिंग था वहाँ पे आपको चांस मिला वो टीम में विद प्लेयर्स लाइक सूर्या कुमार यादव, आदित्य तरे, सिद्धेश एंड सरफराज? तो वो क्या फीलिंग? सो बेसिकली जब मैं जा रहा था एयरपोर्ट पे मैच खेलने चेन्नई, वो सब लोग के साथ, पता ना द वे यू लुक एट इट बोलते हैं, वो अलग ही मतलब है. तो उसी से मुझे समझ गया कि मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, कुछ बड़ा काम करने जा रहा हूँ. और मुंबई टीम का अगर एक्सपीरियंस पूछेंगे तो मतलब वैसे प्लेयर्स के साथ खेलना, सूर्य कुमार यादव, आदित्य तरे, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, वो लोग का जो मैच्योरिटी लेवल रहता है और वो लोग का जो एक्सपीरियंस रहता है ना, वो बहुत काम आता है. उनसे मतलब बहुत ज्यादा सीखने जैसा है. क्योंकि हम लोग गए इधर लोकल क्रिकेट खेल के अंडर 23 पीएल नेशनल लेवल खेल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो लेवल का खेल रहे हैं. तो उनसे, उनके साथ इतने दिन ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उनके साथ रहना, खाना पीना, बहुत ज्यादा सीखने को मिला उनसे. उनको बेसिकली मतलब प्राइसलेस है वो जो मेरे को सीखने को मिला. तो फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट इनिंग्स में अगेंस्ट तमिलनाडु, तो वॉकिंग टू बैट, क्या था दिमाग में, क्या चल रहा था? एक्चुअली थोड़ा नर्वसनेस था. जैसे ऑब्वियसली फर्स्ट रणजी ट्रॉफी मैच वो भी टीवी पे लाइव आने वाला था, लाइव आ रहा था. और सामने आर अश्विन था और विजय शंकर भी था शायद, और काफी सारे मतलब दिनेश कार्तिक था, काफी सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स थे तमिलनाडु में. और ऑब्वियसली फर्स्ट रणजी ट्रॉफी गेम था, तो वो टाइम पे लग रहा था कि ये लेवल बहुत डिफिकल्ट रहेगा खेलने को या बहुत हाई रहेगा. लेकिन फिर जब मैं जैसे ही बैटिंग करने गया, मैं पहला बॉल खेला तो बीट भी हो गया. लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, लाइक 1 ओवर 2 ओवर, आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल. मुझे फिर समझ में आ गया कि मैं काफी प्रैक्टिस करके गया हूँ, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेके गया हूँ, तो मैं ये लेवल खेल सकता हूँ. ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं है. और या उस बीच में मुझे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. वो मैंने भी क्वेश्चन देखा, वो अश्विन वाला मेरे को भी पूछना था. तो वो उनके अगेंस्ट खेलने का कैसा? ठीक है, ऐसा हम लोग जब व्हेन यू आर प्लेइंग कभी नहीं सोचते हम, वो तो डेफिनेटली है, वो हम बोला जाता है कि यू डोंट हैव टू लुक एट द प्लेयर्स. बट फिर भी यार अभी इतना दिमाग में तो आता है जिसको देखा है इतने साल से. तो सी सबसे पहले अगर आपके सामने कौन है, अगर आप वो सोच रहे हो ना, तो कोई भी हो आप उसको खेल ही नहीं सकते हो. अगर आज आप अश्विन को फेस कर रहे हो, या सपोज आज आप बुमराह को फेस कर रहे हो, अगर आपने सोचा ना कि सामने बुमराह डाल रहा है, तो नहीं फेस कर सकते उसको. आपको जस्ट उसको एक नॉर्मल बॉलर की तरह फेस करना है. यू जस्ट हैव टू बी ब्लैंक माइंडेड. एक नॉर्मल बॉलर की तरह उसको फेस करना है. उसने अगर लूज बॉल दिया तो उसको वैसे ही मारना है जैसे एक ऑर्डिनरी बॉलर को मारते हो. उसने अगर अच्छा बॉल दिया तो उसको वैसे ही रिस्पेक्ट देना है जैसे कोई सामने कौन है वो नहीं देखना है. ये सीजन में हिस्टोरिक चेस किया मुंबई ने अगेंस्ट यूपी. 625 का जो बड़ा टारगेट था. तो वो दिन जब मुंबई की बैटिंग आई, तो एटमॉस्फेयर क्या था ड्रेसिंग रूम के अंदर? सबसे पहले तो हम बहुत थके हुए थे. हमने 2 दिन पूरे फील्डिंग किए थे. यूपी की टीम ने मारा था एकदम, बहुत ज्यादा. 2 दिन एकदम टायर्डनेस हुआ कि फुल डे फील्डिंग किया, और सेकेंड डे के लास्ट हाफ एन आवर में हमारा बैटिंग आया. तो आफ्टर 2 days ऑफ फील्डिंग सबके पैर ऐसे मतलब काफी जाम थे, ऑब्वियसली सब काफी टायर्ड थे. सो वो लास्ट हाफ एन आवर निकालना था और मुझे ही जाना था फेस करने. मैं ओपनर हूँ, मुझे मालूम था.
सो मैं गया तो मैंने सोचा था कि यार अपनी थकान आधे घंटे के लिए भूल जाओ, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग मैच भी हो सकता है मुंबई टीम के लिए भी या मेरे लिए भी। तो वो मैं बस भूल गया और मैंने कैसे तो ट्राई करके बस वो हाफ एन आवर निकाल लिया कि मुझे मालूम है मैं कल फ्रेश होके आऊंगा, आज बस हाफ एन आवर निकालना है। तो पहले सबसे पहले हाफ एन आवर निकाला, लेकिन उस बीच में हमारे 2-3 विकेट चले गए उसी दिन हाफ एन आवर में। तो नेक्स्ट डे मैं खेल रहा था हार्दिक तामोरे के साथ, तो हम लोग ने मतलब अच्छा, मतलब उन्होंने 40-50 रन ही बनाए दोनों ने, लेकिन हम लोग ने एक अच्छा स्टार्ट दे दिया टीम को। हम लोग 100 for 2 थे, तो उसके बाद एक अच्छा सेट मिल गया आगे, और फिर सरफराज ने बहुत अच्छा कैरी किया, 300 मारा उसने वो मैच में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग किया उसने, मतलब जैसे जब भी जरूरत थी तभी रुक के खेला, और जब जरूरत थी चेस के लिए जाता तब अटैक किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। बट मेन क्रेडिट आपको और हार्दिक भाई को जाता है कि जो एक मोमेंटम मिल गया था मुंबई को, फिर और आगे आगे नीचे आ रहे बैट्समैन को सिर्फ कैरी ऑन करना था। हाँ मतलब मेन क्रेडिट मतलब हाँ हमारा रोल भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि सुबह सुबह नया बॉल निकालना था। वो भी यूपी पूरे टॉप पे थी, उनके पास 600 रन थे और हम लोग ऑलरेडी डाउन थे। तो वो टाइम पे वैसी पार्टनरशिप हुई हमारी 100 रन की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज था मैच का। तो हाँ एक थोड़ा पार्ट क्रेडिट हम लोग को भी जाता है ऑब्वियसली, लेकिन हाँ बाकी जो नीचे आके लोगों ने खेला उनको भी जाता है अच्छा खासा क्रेडिट। तो वो सरफराज खान की जो इनिंग्स थी ऑफ 300, वो कितना स्पेशल था? मे बी वो बोलते हैं कि उनकी लाइफ की बेस्ट इनिंग्स में से एक थी है, क्योंकि वो एक ऐसे टाइम पे थी और एक एक्चुअली एक ऐसे इवेंट बन गया कि हिस्टोरिक रन चेज हो गया वो। एक तो हम लोग 600 चेस कर रहे थे अंडर प्रेशर, फुल्ली अंडर प्रेशर, और वो टाइम पे उसने 300 मारा, तो वो बहुत बड़ी बात है। मतलब 300 वैसे भी बहुत बड़ी बात है, और उसने ऐसे अंडर प्रेशर मैच में मारा तो और बड़ी बात। तो वो 300 के बाद फिर तो व्हेन आफ्टर दैट चेज, तो वो कैसा था? वो चेज हो गया जब, तो उसके बाद क्या मतलब क्या चल रहा था अंदर? जैसे जैसे मतलब चेस के नजदीक आते गए ना, मतलब पूरा ऑडियंस बहुत ज्यादा आ गया था वो टाइम। तो ऑडियंस और सब में जो हमारे ड्रेसिंग रूम में थे, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था कि हिस्टोरिक रन चेज होने जा रहा है और इतना बड़ा टारगेट हम चेस करने जा रहे हैं, एक हारा हुआ मैच जीतने जा रहे हैं। तो वो टाइम बहुत एक्साइटमेंट था, और जीतने के बाद जो सेलिब्रेशन, मतलब जो खुशी थी ना हम लोग के टीम में, ऐसा लग रहा था कि हम लोग ने कोई टूर्नामेंट में कुछ अच्छा पा लिया, जैसे फाइनल जीत गए या ऐसा कुछ लग रहा था स्पेशली मुझे। तो अभी वी ऑल नो कि मुंबई 41 रणजी ट्रॉफीज के साथ सबसे ऊपर है। तो आपको क्या लगता है कि मुंबई को इतना सक्सेसफुल क्या फैक्टर बनाता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में? नॉट जस्ट द सीनियर टीम, बल्कि जो एज ग्रुप टीम्स है वो भी। सी बेसिकली अपने प्रिपरेशंस, मुंबई में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मैचेस मुंबई में होता है। आप जहाँ आजाद मैदान, क्रॉस मैदान, शिवाजी पार्क, वहाँ आपको यार 20-20 मैच, 30-30 मैच एक साथ चलते रहेंगे। हफ्ते में यहाँ पे 2-2, 3-3 मैचेस खेलते हैं हम। और कुछ स्टेट्स में तो ऐसा भी होता है कि स्टेट मैचेस होने के बाद ज्यादा मैचेस नहीं मिलते उनको अनफॉर्चुनेटली। सो हम लोग जो मैच खेलते हैं ना बहुत ज्यादा, उसका हम लोग को बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है कि बड़े लेवल मैच में कैसा खेलना है। जो इतना मैच प्रैक्टिस मिल जाता है वो बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात, मुंबई में जो क्रिकेट का क्रेज है कि मतलब हर गली में लोग क्रिकेट खेलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सब में वो पैशन रहता है। और मुंबई में राइट अपॉर्चुनिटीज है, मुंबई में राइट वेज है, वैसी एकेडमीज है, वैसा फैसिलिटीज है, वो सब भी एक बड़ा फैक्टर है। और सबसे इम्पोर्टेंट मुंबई का सबसे इम्पोर्टेंट है कि मुंबई का जो खड़ूस एटीट्यूड है कि कुछ करना है करके, वो एटीट्यूड बहुत इम्पोर्टेंट। वो मुझे लगता है कि वो एक वही जो काफी लोग हैं जो मतलब जैसे बोलते हैं हर दूसरा लड़का क्रिकेट खेलता है। तो जैसे वो है कि उसमें फिर आपको रहता है कि बड़ा परफॉर्म करोगे फिर ही जगह मिलेगी टीम में, वैसा। तो वो उसकी वजह से फिर हो जाता है कि जो खड़ूस एटीट्यूड वहीं से आता है। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे करना ही है, वरना फिर जैसे इवन टीम में होता है कि ड्रॉप हो जाते हो आप एक दो बार फेल होने के बाद, तो वो सही आता है। तो लाइक हु डू यू आइडलाइज? ऐसा कोई है कि आप लुक अप टू? मेरा बचपन से एक ही आइडल रहा है, वीरेंद्र सहवाग।
मतलब मैंने उनको देख के बहुत सारे शॉट्स सीखे अपने बैटिंग में। और बाकी मैं किसी को ऐसा आइडल नहीं मानता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का आइडल बनूं, मैं अपनी खुद की मिस्टेक्स से सीखूं, मैं अपने खुद के पॉजिटिविटीज लूं। तो बस मैं यही थॉट लेके आगे बढ़ता हूँ, सिंपल। तो one trait that you think is most important to become a successful cricketer, जो एक कॉमन फैक्टर, ऐसा नहीं है कि कोई सेम नहीं होगा, डिफरेंसेस होते हैं, बट कोई एक चीज जो अकॉर्डिंग टू यू जो चाहिए। हाँ, सो बेसिकली क्रिकेटर मेरे ख्याल से सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है योर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है। और सेकेंडली सुपरस्टिशियस रहना बहुत प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले सुपरस्टिशियस था। कि सुपरस्टिशियस होते हैं तो हमारे मतलब वहम रहते हैं, सुपरस्टिशंस रहते हैं, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती है, यार ऐसा करो वैसा करो। अगर वो नहीं है ना, तो वो एक बिंदास एटीट्यूड आ जाता है मन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होने के लिए। तीसरी बात है पेशेंस। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 1 साल क्रिकेट खेलूंगा पूरी जान से तो मैं क्रिकेटर बन जाऊंगा, मुंबई खेलूंगा, इंडिया खेलूंगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू वर्क फॉर मेनी ईयर्स। कुछ भी बड़ा काम करने के लिए कम से कम 5 साल 10 साल ऐसे देने पड़ते हैं उसमें। हम सीए करते हैं या कोई भी बड़ा पढ़ाई में कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो ग्रेजुएशन भी करना है तो आपको 5 साल देने पड़ते हैं ना, 11-12 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। या आपको समझो सीए भी करना है तो 4-5 साल देने पड़ते हैं ना, या कुछ भी आपको करना लाइफ में, क्रिकेटर भी बनना तो काफी साल देने पड़ते हैं इन शॉर्ट। सो कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड बिलीविंग इन योरसेल्फ आर द 3 मेन थिंग्स यू कीप अप। ये तीनों होना ही चाहिए, रहेगा तो ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग इट बिग। या ओके, सो नाउ आप जैसे सिंस आई गेस 2015 विराट कोहली इन नेशनल क्रिकेट और इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने एक जो रेवोल्यूशन लाया कि आपको फिटनेस और अपने डाइट पे बहुत फोकस करना है, तो आप भी काफ़ी करते हो, तो लाइक हाउ डू यू गो अबाउट इट, और आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है आप उस टाइम? सो एज आई टोल्ड कि मैं आज से 5 साल पहले 85-90 kgs का था, काफ़ी बल्की था, हेल्दी था, लेकिन फिर मैंने अपना वेट रिड्यूस किया, फिटनेस इम्प्रूव किया। सो अभी का जो रेवोल्यूशन है वो क्रिकेट में फिटनेस फ्रीक है, वो कि आपको फिट रहना ही होगा, क्योंकि अभी T20 का ज़माना है। आपको मतलब क्विक सिंगल्स लेने हैं, फील्डिंग अच्छा करना है, तो इसके लिए फिटनेस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। मतलब अगर मैं ज़्यादा पर फिटनेस तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं ग्राउंड ट्रेनिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। मतलब ग्राउंड में आप जो करते हैं ना, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग आवर्स एंड आवर्स इन जिम, मतलब बहुत लोग होते हैं जो जिम में ही पूरा दिन, हफ्ते में 5 दिन जिम करते हैं, 1 दिन ग्राउंड ट्रेनिंग करते हैं। सो मैं वैसा नहीं करता। मैं मानता हूँ कि हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो तो 3 दिन जिम करो, 3 दिन ग्राउंड ट्रेनिंग करो। आजकल ऐसे है कुछ प्लेयर्स जो बहुत ज्यादा जिम ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑब्वियसली जिम ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ग्राउंड ट्रेनिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड पे जो रनिंग रहता है या एजिलिटी ड्रिल्स होता है, या ग्राउंड पे जो अपन बेसिक फिटनेस ड्रिल्स कर सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिटनेस को ओवरऑल मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, पर बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर टाइम मिला तो फिटनेस करते हैं और अपना क्रिकेटिंग ड्रिल्स बाद में करते हैं। सो दैट्स ऑल्सो वेरी रॉन्ग। अपने को क्रिकेट को और फिटनेस को इक्वल टाइम देना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर 2 घंटा बैटिंग कर रहे हो तो 1-1.5 घंटा फिटनेस भी करना चाहिए, लेकिन ऐसा मत करो कि 3 घंटा बैटिंग कर रहे हो फिटनेस नहीं कर रहे हो, या 2 घंटा फिटनेस कर रहे हो बैटिंग नहीं कर रहे हो। दोनों में इक्वल बैलेंस करना चाहिए। और डाइट का क्या, लाइक हाँ, 85 kg, या तो फिर वो चेंज करने में तो काफी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अभी तो वो आदत हो गई, तो हाउ वाज दैट फेज ऑफ टर्निंग, यू नो, कि और कॉन्शियस होना है कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं। Yeah, so basically it started 3-4 years back when I was operated, मेरा सर्जरी हुआ था, कि अभी मुझे मालूम था कि 3-4 महीना में कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकता, अगर सिर्फ खाता रहा तो मोटा हो जाऊंगा ऑब्वियसली। सो मैंने सबसे पहले रोटी खाना बंद कर दिया, रोटी राइस, बिकॉज व्हीट का जो रोटी रहता है, व्हीट का या फ्लोर का, सो उसमें बहुत ज़्यादा फैट्स रहता है, तो मैंने वो बंद कर दिया। ऑब्वियसली दैट वाज डिफिकल्ट, मेरे को स्वीट्स का बहुत ज़्यादा आदत था, वो मैंने कम कर दिया। तो ये 2 मेन चीज़ मैंने कम किया, और ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगा, प्रोटीन रिच फूड खाने लगा।
तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे टाइम लगा, बट बहुत हेल्प हुआ मुझे 85 से 86 से 70 72 तक। और फिर हाउ डू यू डील विद के होता है ना कि यार चल एक दिन तो वो कैसे उसको कैसे अवॉइड किया जो ब्रेक करने का? सी एक्चुअली अगर हम 15 या 10 डेज में एक दिन चीट डे रखेंगे ना, जिस दिन हम अपना मनपसंद खा सकते हैं, तो वो हम लोग को क्रेविंग्स कम हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं एक साल तक ये नहीं खाऊंगा, एक साल तक वो नहीं खाऊंगा। दैट्स रॉन्ग। अपने आप को एक चीट डे दो 10 डेज में या 15 डेज में, तो खुद ही वो क्रेविंग्स कम हो जाते हैं। और बाई चांस अगर बहुत मन हो गया, समझो मेरे को बहुत स्वीट्स का क्रेविंग होता है, बहुत ज्यादा मन हो भी गया ना, तो थोड़ा सा सपोज एक पेड़ा होता है, जो पेड़ा या लड्डू होता है, लड्डू का थोड़ा सा पार्ट खा लिया तो क्रेविंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आज खा लिया कल तो खाऊंगा भी नहीं, ऐसा हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल ये हमारा 2020 का जो सीजन था वो तो गया, ये लॉकडाउन के वजह। तो क्या लगता है आगे कैसा इट विल कम बैक? सी आगे टूर्नामेंट्स कैसे होंगे, क्या होंगे, वो तो फिलहाल नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि ये जो लॉकडाउन के टाइम में जिसने अपने आप को मेंटेन किया होगा फिटनेस वाइज, क्रिकेटिंग वाइज, जो थोड़ा बहुत टच में होगा, जिसने ड्रिल्स किया होगा, वही आगे वाले आने के सीजन के स्टार्ट तक अपने आप को सस्टेन कर पाएगा। नहीं तो जिसने 6 मंथ्स कुछ नहीं किया, ना ट्रेनिंग किया, ना क्रिकेटिंग ड्रिल्स किया, या कोई भी फील्ड में जिसने अपने आप को मेंटेन नहीं किया होगा, वो पहले के 4 to 5 मंथ्स में टिक नहीं पाएगा। क्योंकि बाकी सब लोग जिन्होंने किया है अपने आप को मेंटेन, वो उनको काफी फायदा मिलेगा। तो बहुत लोग बोलते हैं कि वो लोग को जिम बंद है, प्रैक्टिस बंद है, तो क्या करें। नहीं, ऐसा होता है, घर पे भी अच्छा खासा वर्कआउट हो सकता है, घर पे भी अच्छी खासी ड्रिल्स हो सकती है। एज अ बैट्समैन सॉक्स में बॉल डाल के हैंगिंग बॉल खेल सकते हो, मिरर के सामने ड्रिल्स कर सकते हो, सब साइड पे बेडशीट्स या चादर लगा के बॉल मार सकते हो ताकि चादर पे लग के बॉल रुक सके। तो ऐसे काफी सारी ड्रिल्स आती है जिससे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं विकेटिंग में। तो अगर विल है तो वैसे कर ही सकते हैं ऐसा, बट तो फिर उसके लिए फिर एक रीजंस बनते। हाँ या और जब व्हेन लाइक हाउ डू यू मैनेज अ बैड फेज, या फिर जैसे होता है ना कि अभी विकेट रन नहीं बन रहे हैं या कभी कभी कुछ नहीं हो रहा, तो उसको कैसे डील करें? सो बेसिकली मैं जब मेरे रन्स नहीं होते हैं तो मैं अपने पुराने बैटिंग के वीडियोस देखता हूँ। स्पेशली स्टेट मैचेस में ऐसा होता है कि हमको मिलते हैं बैटिंग वीडियोस हमारे, तो मैं बेसिकली अपने मैच के वीडियोस देखता हूँ कि मैं जो बेस्ट इनिंग्स खेला था उसमें मैंने क्या किया था, मे बी टेक्निकली, मे बी मेरा माइंडसेट क्या था, वो सब मैं याद करता हूँ। मेरा रूटीन क्या था, मैंने क्या किया था वो टाइम पे, मतलब मेरा डिसिप्लिन वाइज कितना मैं फोकस था, वो सब चीज़ों को याद करता हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही वापस फॉर्म में आने में हेल्प करती है। मतलब जो मिस्टेक्स थे उसको यू ट्राई टू बेटर देम। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर फॉर्म में आना है तो मिस्टेक से भी ज्यादा अपने आप को, मतलब वो टाइम पे मैं क्या अच्छा कर रहा था, वो टाइम पे मैं क्या पॉजिटिव कर रहा था। जैसे टेक्निकली बोला जाए तो मेरा शफल मूवमेंट क्या था, मेरा बैट कैसे आ रहा था, मैं लेट खेल रहा था, जल्दी खेल रहा था, या फॉर एग्जाम्पल अगर माइंड सेट, मेरे माइंड में उस समय क्या विचार थे, वो सब याद करेंगे तो फॉर्म में आने को हेल्प होता है। So where do you how do you plan your future? तो अभी the next 5 years में क्या प्लान है? सी मेरा तो एक ही प्लान है, सबका गोल रहता है कि इंडिया के लिए खेलना, मेरा भी है वो, नो डाउट। लेकिन बाय नेक्स्ट टारगेट मैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है इंडिया ए, रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करके इंडिया ए को सिलेक्ट होना, इंडिया ए और मे बी IPL, कि ये दोनों मेरे स्टेप्स काफी पास है। क्योंकि रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म किया तो इंडिया ए और IPL मिल जाता है ऑटोमेटिकली। सो मेरा नेक्स्ट गोल्स ये है। तो एक एडवांटेज है रहता है बड़े, या मुंबई में परफॉर्मेंस किया मुंबई की तरफ से तो ज्यादा हाईलाइट हो जाता है। तो लाइक गोल बाय गोल यू लुक एट इट, या स्टेप बाय स्टेप कैसे छोटे छोटे करके हम कर सकते हैं। या So thank you Bhupen for this. Yeah. I hope everyone who is watching enjoyed it, and
This will also be found on YouTube. This will be uploaded on YouTube in some time. So thank you, Bhupen, and check out his YouTube Thank you. channel. He posts good videos, and like you'll find really Thanks. something good from his YouTube. So yeah, thanks, Bhupen. Have a great Thank day. you. Thank you. Bye. Thank you. Take care. Bye. Thank you.